Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you guys are doing well. So this is the next video, the LRDA Basic to Advanced series. This is Venn diagrams part 5. Let's start with today's set, and as always, first pause this video right here itself. Try this set first yourself and then proceed on with the rest of the solution. Okay, so I hope you have tried this particular set. Let's start solving this. So what do we have in this particular situation? Out of the 625 first year students, two-fifth of them were enrolled in the computer science, that is CS department at an engineering college. These CS students were assigned four projects A, B, C, and D. Each CS student worked on at least one of the four projects, right? So that should mean like there is a four set Venn diagram and every value is there within the diagram itself. ये वाली जो line बोली उसने, each CS student worked on at least one of the four projects. So that should mean none wala part is essentially zero in this. The following information is known about the students who worked on these projects, and then we have a lot of conditions. So just to accommodate these conditions, let's bring the four set Venn diagram into perspective. कैसे बनाते हैं एक 3x3 बना लो सबसे पहले तो लेट्स डू दिस लेट्स डू अ 3x3 grid first and then join a few points, something like this. Right, we have already done that in a previous video. This should be fine, right? Okay. Now, so what did we have with respect to the numbers initially? Total अपना 625, but with Venn diagram का total 625 नहीं है. इस 625 में से 2/5 वर enrolled in the CS department. तो CS department का total कितना हो जाएगा? 625 का 2/5. So this will be 125. 125 का double. This will be 250. So there are total of 250 students. Because ये जो Venn diagram है वो इन CS department वाले students का बन रहा है. Because they were assigned to four projects, that is A, B, C and D. तो इस पूरे वेन डायग्राम का टोटल हमारा 250 है. ऑल्सो बिकॉज नन वाला पार्ट इज 0 ईयर. ठीक है. ओके, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन. लेट्स डू दिस. फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? 44% ऑफ द स्टूडेंट्स वर्कड ऑन प्रोजेक्ट ए. नाउ ये सीएस वाले का ही ब्रेक डाउन करना है बार बार. ठीक है. सो 250 का 44%, 250 का 44% कितना आएगा? लेट्स कैलकुलेट दिस. लेट्स नॉट यूज अ कैलकुलेटर. तो 250 का 44%, सो 44% के लिए 40% और 4% कर लो. 40% की जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो 4% बन जाएगा. 40% की वैल्यू कितनी होगी? 10% इसका कितना बनेगा? 25. तो 40% कितना बनेगा? 25 इंटू 4. राइट. सो 25 इंटू 4 इज 100. और मैंने क्या बोला था? अगर 40% 100 है, राइट, तो 4% कितना होगा? 40% को अगर आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो 4% बन जाएगा. तो अगर 100 है 40%, तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, 10 आ जाएगा. सो 100 प्लस 10 विल करस्पॉन्ड टू दैट 44%. दैट इज हाउ यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट. ठीक है, ओरली करने की आदत डालो. सो ए का टोटल हमारा कितना हो गया? दिस इज 110. लिख लो. देन 58% of the students worked on project C. So C का टोटल हमारा 58% है. Now 58% निकालने के लिए I would prefer doing this as 60% minus of 2%. 60 एंड 2 का डिफरेंस 60% कितना बन जाएगा इसका? 10% अगर 25 है तो 60% कितना बन जाएगा? 25 इंटू 6 दैट इज 150 माइनस 2%. 1% कितना बनेगा? 2.5. तो 1% अगर 2.5 है तो 2% क्या होगा? 2.5 का डबल हो जाएगा, दैट इज 5. सो 150 माइनस ऑफ 5, सी का टोटल था ये, दिस विल बी 145. राइट, ये आ गया अपना सी का टोटल. सो दिस टेक्स केयर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट entirely. Next, second point. 12% of the students worked exclusively on project B. So 12% exclusive B मतलब ये वाला वैल्यू. तो 12% इस नंबर का निकालो. 10% कितना बनेगा? 25 है ना. 10% अगर 25 है और 2% हमने भी थोड़ी देर पहले था देखा था कितना था वो 5. तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 5 दैट इज 30. तो 30 हमारा क्या है? एक्सक्लूसिव बी. सो दिस इज 30. While 8% of the student worked exclusively on project D. So इस नंबर का 1% 2.5 है तो 8% कितना होगा? 2.5 इंटू 8, सो 20 हो जाएगा. 8 2 16 और 5 8 40 का 4, तो 20 हो जाएगा. तो ओनली डी हमारा
20 है, ओनली डी दिस वुड बी 20, राइट। ये रीजन हम ऑलरेडी वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इफ यू हैव नॉट डन दैट तो पुराने वाले सेशंस देखोगे, उसमें फोर्स सेगमेंट डायग्राम में कौन सा रीजन क्या है वो क्लियरली समझ रखा था हमने, ठीक है। Third point, 8% of the students worked on all four projects. So 8% of the student worked on all four projects. 8% की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली थी, 20 आती है तो 20 all four है, सो सेंटर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 20. While 26% of the student worked on exactly one project. Now exactly one project के दो components already हम लिख चुके हैं, that is 30 and 20, right? 50 तो already हमारे पास है, तो 26% एग्जैक्टली वन है। अब 26% की अगर आप वैल्यू देखो कितना आएगा, 10% इस नंबर का 25, तो 20% भी 50 प्लस 6%, 1% इज 2.5, तो 6% कितना हो जाएगा, 6 to 12, 6 5 30, 15, तो 50 प्लस 15, तो एग्जैक्टली वन का जो टोटल वाला वैल्यू है, जो कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस है, वो अपन का कितना है 65. Out of that 65, we have already covered 30 and 20, that is 50. तो remaining only A और only C का total कितना बचेगा आपका, 65 minus 50, that is 15. Now I'll start denoting this by maybe variables. जैसे इन दोनों का एडिशन अगर आपका मान लो आपको पता है कि 15 है, मान लो इसको अगर मैं A लेता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 15 माइनस ऑफ ए, है ना, क्योंकि दोनों का एडिशन फिक्स्ड है 15. अगर मैं लो इसका वैल्यू A लिया, सो दिस हैज टू बी 15 माइनस ए, ये फिक्स हो जाएगा. तो ये वाला कंडीशन अपन ने यूज कर लिया, वी डोंट नीड टू कम बैक टू दिस. हो गया. नेक्स्ट फोर्थ, 6% of the student worked exclusively on project A, B and C. तो A, B and C only. So exactly three region ये वाला. This is A, B and C only. तो 6% of the student worked exclusively on projects A, B, C. 6% of 250, 1% 2.5, तो 6% 15, तो ये हो जाएगा आपका 15. Then while 4% worked exclusively on projects A, B, D. So A, B and D, this value. ये कितना हो जाएगा 4% ऑफ 250, 1% इज 2.5, 4% वुड बी 10, सो ये आ गया आपका 10. ठीक है, सो 6% ABC ओनली, 4% ABD ओनली, 30% ऑफ द स्टूडेंट वर्कड ऑन एग्जैक्टली 3 प्रोजेक्ट्स. नाउ एग्जैक्टली 3 के भी 4 रीजन्स है, दिस 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 एंड दिस, प्लस साइन में जो आता है एक्सेप्ट फॉर द सेंटर. तो एग्जैक्टली 3 की ओवरऑल वैल्यू हमारी 30% है इस चीज़ की 250 की. सो 10% अगर 25 है तो 30% कितना हो जाएगा 75. नाउ अगेन इस 75 में से दो वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 15 एंड 10, दैट इज 25, तो ऑलरेडी अपन को पता है. तो 25 अगर मैं 75 में से हटा दूं तो आई वुड बी एबल टू से कि ये दोनों जो वैल्यूज है मिसिंग, ये दोनों 50 है एड अप करके. जैसे हमने ए और 15 माइनस ए लिखा था वैसे इसको भी रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. सपोज ये बी लिखा मैंने, सो दिस विल बी 50 माइनस ऑफ बी, राइट. ये कर सकते हैं, आराम से रिप्रेजेंट हो गया. सो दिस इज ऑल्सो डन. तो हमारा ये फोर्थ वाला पॉइंट पूरा यूज्ड अप है. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, 6% ऑफ द स्टूडेंट वर्क एक्सक्लूसिवली ऑन प्रोजेक्ट्स बी एंड डी. बी एंड डी ओनली, सो बी एंड डी ओनली इज दिस. तो 6% ऑफ 250, 15, which is 40% less than the number of students who worked exclusively on project B and C. Now देखो, अगर मैं एक्सक्लूसिवली बी एन सी को फॉर एग्जाम्पल देखो फ्रैक्शन का यूज कर रहा हूं मैं, 40% इज 2/5. अगर इस चीज को अगर मैं 5 यूनिट्स लेता तो ये जो पहला वाला चीज था दैट इज बी एन डी ओनली, वो इस 5 से 2/5 कम होगा. 2/5 ऑफ 5 वुड बी 2, 2 कम होगा तो वो 3 हो जाएगा. तो 3:5 का रेशियो है. जो पहले क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड है दैट इज बी एन डी ओनली दिस, और बाद में जो क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड है दैट इज बी एन सी ओनली दिस. तो दिस इज टू दिस इज 3:5. और इसमें ये वाले की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता भी है, 6% इज ओनली बी एन डी, एक्सक्लूसिव बी एन डी. तो 6% ऑफ 250 वुड बी 15. तो ये अगर आपका 15 है और ये 315 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो ये 5 टाइम्स हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 टाइम्स करके 25. सो दिस विल बी 25. बेसिक कैलकुलेशंस रेशियोज का यूज. तो ये फिफ्थ वाला पॉइंट से ये दो नंबर निकल गए. नाइस. तो अभी तक हमारा डायग्राम में क्या है, दो ही वेरिएबल अभी तक इंट्रोड्यूस्ड है, बट यू स्टिल हैव अ फ्यू वैल्यूज टू फिगर आउट. नेक्स्ट 2 more पॉइंट्स टू गो. सिक्स्थ पॉइंट बोलता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who exclusively worked on projects ANC only, this value ANC only is equal to the number of students who exclusively worked on projects A and D only.
तो ये दोनों मेरे बराबर है ना। ये दोनों को क्या बोला है, बराबर रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये सी है तो दिस विल ऑल्सो बी सी, क्योंकि सी अभी तक हमने यूज नहीं करा था, तो आई रिटन दिस टू बी सी। ठीक है, ए एंड सी ओनली एंड ए एंड डी ओनली। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ वाला पॉइंट। लास्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्सक्लूसिवली वर्कड ऑन प्रोजेक्ट्स ए एंड बी, नाउ ए एंड बी, दिस is equal to the number of students who exclusively worked on project C and D, this, which represents 50% of the number of students who exclusively worked on projects A, C and D. A, C and D. तो A, C and D exclusive would be this B. अब यहाँ पे इसने ये बोला है कि ये दोनों वैल्यू जो है सेम है एंड इट इज 50% ऑफ दिस बी। अगर मैं यहाँ पे बी लिखूंगा तो यहाँ b/2 और यहाँ b/2 लिख सकते हैं। मैं इसमें फिर भी ये प्रेफर करूंगा कि मैं इसको 2b लिख लूँ, क्यों फ्रैक्शंस लिखना है। सो अगर मैं इसको 2b कर रहा हूँ तो मैं अकॉर्डिंगली चेंजेस करूंगा। जैसे अब ये 2b है तो मैंने यहाँ पे भी 50 माइनस बी जो लिखा था ये भी 2b रहेगा, ठीक है ना। लेट्स मेक दैट चेंज, दिस विल बी 50 माइनस ऑफ 2b, ठीक है। और ये अगर 2b है तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, b एंड b ईच, 50-50% of that. Okay, so now we are pretty much done with all the points. We still have few variables to go. इनकी वैल्यूज हमें फिगर आउट करनी है। अब सबसे बेस्ट चीज देखो, इवन दो बहुत सारे वेरिएबल्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए, काफी सारे वैल्यूज आए, बट अब आप ये सोचो कि आपको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। तो आप यही करोगे कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपको उसको यूज करके वेरिएबल्स की वैल्यू वगैरह फिगर आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि आपके पास किस चीज की वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब कहाँ से आप क्या इक्वेशन वगैरह बना सकते हो। तो आपको फर्स्ट आइडिया आएगा कि लेट्स यूज दिस 110, maybe let's use that 145, and maybe you'll also believe कि भाई ये 250 पूरे डायग्राम का टोटल है, तो उससे भी हम कुछ तो कर ही सकते हैं, राइट। उसे भी हम एक बार देख सकते हैं। तो पहले काम करते हैं, सब कुछ एडअप करके 110 के इक्वल डालते हैं, सी का टोटल एडअप करके हम 145 के इक्वल डालते हैं, देखते हैं कि क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। अब मान लो मैंने ये सब कुछ एडअप करके 110 के इक्वल डाला, तो व्हाट विल आई हैव फ्रॉम दिस। तो वेरिएबल्स कलेक्ट करो, तो सेकेंड, ठीक है, लेट्स राइट इट। सो ये पूरा अगर मैं एडअप करूं तो हमारा ए एक बार आ जाएगा, सो लेट्स कॉल दिस ए। फिर इसमें हमारा बी कितनी बार है, दो बार बी है, सो तीन बार बी है, 2b प्लस बी है, सो दिस विल बी ए प्लस 3b, ठीक है। देन 2c आ गया, राइट, सो दिस विल बी 2c। एंड फिर ये तीनों एडअप करके कितना आ जाएगा, 20 प्लस 10 प्लस 15, सो 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 इज 45, सो प्लस 45, दिस विल बी इक्वल टू 110। तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो a प्लस 3b प्लस 2c, दिस विल बी इक्वल टू 110 माइनस ऑफ 45, तो 55 प्लस 10 65 बनेगा। एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। दूसरी इक्वेशन इसको एडअप करके बनेगी। अब जब इसको एडअप करोगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो इसको जब हम एडअप करेंगे तो देखो ये 2b और ये नेगेटिव 2b तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, नेगेटिव है और यहाँ पे बी प्लस सी, सो ऐसे लिख सकते हैं इसको, बी प्लस सी माइनस ऑफ ए, है ना, बी प्लस सी माइनस ऑफ ए। तो बी प्लस सी माइनस ऑफ ए, ठीक है, बी प्लस सी माइनस ऑफ ए, ये हो गया वेरिएबल्स। और फिर बाकी कांस्टेंट वैल्यूज उठा लो, तो कितना कितना आ जाएगा, 15 प्लस 25 प्लस 15, दिस विल बी 40, 40 एंड 15 55, 55 और 70, राइट, 55 और 70, 125, तो प्लस 125, दिस हैज टू बी इक्वल टू दिस 145। तो अब इसको भी अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा हमारा b प्लस सी माइनस ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू 145 माइनस 125, दिस विल बी इक्वल टू 20। सो आई हैव दिस रिलेशन एंड आई ऑल्सो हैव दिस रिलेशन, ठीक है। नाउ जो लास्ट रिलेशन है ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए, वो 250, ठीक है। जो भी है उसको आप यूज करा करो, इवेंचुअली वैल्यूज आती है। तो लास्ट रिलेशन जो हमारा 250 है, उसके लिए क्या करना है अपने को, सारी वैल्यूज इवेंचुअली हम एड अप करेंगे एंड दैट शुड इक्वेट टू 250। सो इसको हटा रहा हूँ, विल जस्ट रिमेंबर कि नन हमारा जीरो ही है। सो अगर मैं इस पूरे डायग्राम की सारी वैल्यूज को उठा के एड अप करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, देखो चार रीजन है, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4। वैसे कर लेते हैं ताकि कुछ गलती ना हो।
एग्जैक्टली वन की ओवरऑल वैल्यू हमारे पास हमें पता था, एग्जैक्टली वन वाला चलो छोड़ो, कोई नहीं, भूल गए। तो लेट्स से ए 30, 15 माइनस ए और 20, सो कितना था? हाँ, ये दोनों का एडिशन हमारा 15 था, और 30 प्लस 20 कितना हो गया हमारा? 50। तो 50 और 15 65 था। तो 65 प्लस, फिर एग्जैक्टली टू वाले वैल्यूज ऐड अप करो, तो एग्जैक्टली टू वाले वैल्यूज हमारे एक तो ये हो गए 2b, इट्स राइटेड 2b, प्लस फिर ये कॉर्नर पे जो ये स्क्वायर है इसके कॉर्नर पे जो वैल्यूज है, तो 2c प्लस 25 प्लस 15 इज 40। ये एग्जैक्टली टू वाले वैल्यूज है। फिर एग्जैक्टली थ्री वाले ये चार वैल्यूज है, उसमें 2b और 2b वैसे भी कट जाएगा, है ना? तो कितना बचेगा आपका? 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 50 75 बचेगा आपका, राइट? सो दिस विल बी 75, ठीक है। सो दिस इज 75, एंड देन एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू हो गया, राइट? एग्जैक्टली टू हो गया था, फिर एग्जैक्टली थ्री हमारा 75 हो गया, एंड ऑल फोर हमारा कितना हो जाएगा? 20। तो अब यहां से अगर ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये चीज इक्वेट करना है मेरे को किससे? वैल्यूज तो सारी ले ही चुके हैं, इक्वेट करना है हमें 250 से। तो कितना आ जाएगा? लेट्स सॉल्व दिस। तो 2b प्लस 2c रहेगा, और बाकी सब तो नंबर है। सो 2b प्लस 2c कितना हो गया? 65 प्लस 75, दैट इज 140, है ना? 140, 140 प्लस 40 180, 180 प्लस 20 200, तो 200, और इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा हमारा 50। तो यहाँ से भी b प्लस सी की वैल्यू हम बता सकते हैं कि 25 है। तो b प्लस सी देखो 25 है, ठीक है। अब हमारे पास आगे तीन इक्वेशन, तो आइडियली थंब रूल ये है कि अगर तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होने चाहिए टू गेट द यूनिक वैल्यूज, और वो आराम से आ भी जाएगी। कैसे? अगर आप नोटिस करो, जैसे यही दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन में हम एक सिंपल काम कर सकते हैं। मान लो अगर मैं दोनों इक्वेशन को सीधा उठा के ऐड अप कर देता हूँ, ए को एलिमिनेट कर सकते हैं हम। अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं ऐड अप कर दूं, तो ए एंड नेगेटिव विल गेट कैंसल्ड आउट। 3b प्लस बी से कितना हो जाएगा आपका? 4b। 2c प्लस सी से कितना हो जाएगा आपका? 3c। ये हो गया, और 65 प्लस 20 85, है ना? सो ये 3c इक्वल टू 85, एक इक्वेशन ये आ गई। b प्लस इक्वल टू 25, एक और रिलेशन आपके पास है ही, तो एक काम कर लो ना, कोफिशिएंट सेम कर लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सो ये 3b प्लस 3c इक्वल टू क्या आ गया? 75। अब अगर मैं इस फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 10। एक तो ये आ गया। b की वैल्यू 10 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 15। तो c इज ऑल्सो डन। फिर a की वैल्यू इनमें से निकाल लो, इसमें प्लग इन कर दो। b की वैल्यू आपकी 10 है, c की वैल्यू आपकी 15 है, तो 25 माइनस समथिंग करके 20 आ रहा है। 25 माइनस समथिंग करके अगर 20 आ रहा है तो a की वैल्यू क्या रही होगी? 5। सो नाउ वी हैव द वैल्यूज फॉर ऑल द वेरिएबल्स, सिर्फ अपने को इक्वेट करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। तो नाउ वी कैन फिगर आउट ऑल द वैल्यूज। सो a इक्वल टू ये 5 आ जाएगा, जहाँ पे a है उसको पहले प्लग इन कर लो, तो ये a इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक। तो चलो पहले लिख लेते हैं, ये हो गया। फिर b की वैल्यू हमारी 10 है, सो दिस इज 10। फिर दिस इज 10, b की वैल्यू 10, सो दिस इज 20, एंड b की वैल्यू 10, सो दिस इज 30। और फिर c की वैल्यू हमारी 15, सो दिस इज 15, दिस इज ऑल्सो 15, और तो हमारा है नहीं कुछ, सो वी आर प्रिटी मच डन। नाउ वी हैव ऑल दीज वैल्यूज विद अस, ठीक। तो ये आ गया हमारा पूरा यूनिक पूरा डायग्राम। लेट्स कैलकुलेट नाउ, लेट्स गो टू द क्वेश्चंस एंड सी क्या पूछा है। What is the difference in the number of students who exclusively worked on projects A and C compared to those who exclusively worked on projects C and D? A C only उठाओ, A and C only would be 15, and C and D only, C and D only would be 10. तो 15 and 10 का डिफरेंस पूछा है, so the answer would be 5. सेकेंड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर्कड ऑन प्रोजेक्ट डी? सो डी का टोटल चाहिए अपन को, सो डी का टोटल कितना हो जाएगा? 20, 10, 30, 30 और 30, 60, 60 और 40, 100,
140. So this is 140. Third, what percentages of CS students, so 250 worked on project B. So 250 तो हमारा डिनोमिनेटर बन ही रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सीएस डिपार्टमेंट, उसमें से कितने हमारे दे वर्कड ऑन प्रोजेक्ट बी. बी का टोटल कितना हो गया? 30, 25, 30, 15. सो 30, 30, 60, 60 और 40, 100, 100. उसके बाद 100, 10 एंड 20 इज 30, 30, 10, 40, 40 और 15, 40 और 15, 55. तो 155. कितना होगा ये सॉल्व करके? 531 एंड 50 और इंटू 100 कर दो तो 52, दैट इज 62%. ऑप्शन डी. फोर्थ, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्सक्लूसिवली वर्कड ऑन प्रोजेक्ट सी? Exclusively C, that is 10, and the number of students who exclusively worked on project B, C, and D. B, C, and D exclusive. So this has to be this 30. Sorry, this is 30. So 10 is to 30, that is 1 is to 3. Option C is the right answer. राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इसी टाइप के आपको सेट कैट में पी वाई क्यू जब आप सॉल्व करोगे तो भी 4 सेट वेन डायग्राम के देखने को मिलते हैं. दिस इज जस्ट अनदर एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट कि 4 सेट वेन डायग्राम इज स्टिल वे इजियर देन अ 3 सेट वेन डायग्राम, एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्सिटी विच इज बीइंग टेस्टेड बाय कैट अथॉरिटीज. तो उस पैरामीटर से दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको नॉर्मली 4 सेट वेन डायग्राम में देखने को मिलता है. Right, so I hope you understood this particular set. Before we move on, very important information. जो हमारे फाइनल 2 बैचेस हैं वो हमारे लॉन्च होने वाले हैं. तो हमारा 2 बैच है. पहला बैच का इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ. दिस इज द फास्ट पेस बैच और ये हमारा 20th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, तो पूरा आपका सिलेबस इसमें कवर होगा, बट ऑब्वियसली इस बैच के नाम में ही आपको फास्ट पेस दिख रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड एट अ फास्टर पेस. तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगे. तो इसमें आपको एलआर में फॉर एग्जांपल मैं भी आपको देखूंगा, हितेश सर भी आपको इवेंचुअली इस पर्टिकुलर बैच में देखने वाले हैं, कभी कभी आपको रजनी सर भी इस पर्टिकुलर बैच में LRDI के रेस्पेक्ट से मिलने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड इन अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो उसको कवर कराने के लिए देयर विल बी क्लासेस ऑल्सो, क्वाइट अ फ्यू क्लासेस, एंड इसमें हमारा जो पूरा कंप्लीट फैकल्टी पूल है वो इसमें इन्वॉल्व होने वाला है. राइट, सो जस्ट नोट द डेट, 20th ऑफ जुलाई से ये पर्टिकुलर बैच स्टार्ट होगा. इस पर्टिकुलर बैच के जो हमारे की फीचर्स हैं वो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहे हैं. पूरा आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होगा लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग्स के थ्रू. 25 फुल लेंथ मॉक्स एंड 30 सेक्शनल मॉक्स मिलने वाले हैं. 150 टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट एंड बुकलेट्स भी आपके इस पर्टिकुलर बैच में इंक्लूडेड है. एंड इस पर्टिकुलर बैच में जो बूस्टर कोर्स हमारा सितंबर में स्टार्ट होता है उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा along with doubt solving, and this course has a validity till 30th of November. तो स्पेसिफिकली अगर आप कैट 26 के लिए लास्ट मोमेंट में प्रेपरेशन करना चाहते हो, सो दिस इज द बैच फॉर यू. एंड लास्ट, जो हमारा सेल्फ पेस बैच है, काफी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे. लास्ट ईयर भी हमारा सेल्फ पेस का बैच आया था. सो इफ यू बिलीव यू आर अ कैंडिडेट जो चाहता है कि अपना पूरा प्रेपरेशन अपने हिसाब से मॉनिटर करे एंड अपने हिसाब से उसको पेस कर सकता है कि मुझे अब ये टॉपिक कवर करना है, मुझे अब ये टॉपिक करना है, राइट. स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू दोज कैंडिडेट जो लास्ट ईयर ऑलरेडी कैट लिख चुके हैं, सिलेबस उनका पूरा आइडिया है, बट उनको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस मटेरियल अच्छा ढूंढ रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर बैच उनके लिए है. पूरा आपका ये पर्टिकुलर जो बैच है वो हमारे पुराने लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग्स का कंपाइलेशन है. विल फाइंड एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट राइट इन अ डिटेल्ड मैनर along with all the practice sheets which are there in the regular batch itself. Right, so बस यही है. एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोस्त जो अपना पूरा प्रिपरेशन क्या करना चाह रहे हैं, सेल्फ पेस करना चाह रहे हो. इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मॉक्स भी मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे एंड आपके इंटरेक्टिव एडवांस सेशंस भी होंगे, राइट. कुछ स्पेशल वर्कशॉप्स वगैरह सब कुछ इसी पर्टिकुलर बैच में आपको मिलने वाला है. तो इफ यू आर लुकिंग टू पेस योर प्रिपरेशन योरसेल्फ, दिस इज द बैच फॉर यू. अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो ये फास्ट पेस बैच आपके लिए है. ठीक है, सो आई होप द कंफ्यूजन इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड आई ऑल्सो होप यू अंडरस्टूड टुडे सेट. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू गाइस, बाय, गुड नाइट.